ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସନ୍ନ ପାଠୀ। ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସର ସୋସିଓ ରିଲିଜିୟସ୍ ରିଫର୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ, 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମଗତ ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ଭାରତର ହୋଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜିର ସମସ୍ତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ମୁଁ ଯାହାକି ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ପୁସ୍ତକ ତା ସହିତ ମନୋଜ ଏମ୍ ଦାସଙ୍କର ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଯୁକ୍ତ 3 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର CC 13 ବା 13 ନମ୍ବର ପେପରରେ ରହିଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ବିଷୟଟି। ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସୋସାଇଟି। ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଉପରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଧର୍ମଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆସିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦ ୟୁରୋପିଆନ୍ସ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। When the Europeans came to India for the purpose of trade, that time the European traders came in contact with the Indian traders and they were exchanged their materials, and also both Europeans influenced by the Indian people and Indians are influenced by the European people. ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଭିତରେ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ 16ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେହି ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପଦାର୍ଥର ଅଦଳ ବଦଳ କରିବା ସହିତ ୟୁରୋପୀୟ ମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇଥିପାଇଁ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଧର୍ମଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆସିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟି ହେଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ, ଟେରିଟୋରିଆଲ ଆଣ୍ଡ କୋଲୋନିଆଲ କନସେପ୍ଟକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତରେ ସେଇମାନେ ଇଂରାଜୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜକୁ ବା ଇଂରାଜୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳିତ କଲେ। ସେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ଭାରତର ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଫଳରେ ଦ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପିପୁଲ୍ସ, ଏଜୁକେଟେଡ ପିପୁଲ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ରିଡ୍ ଦ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ଫିଲୋସଫିଜ୍ and western texts, and that's are influence over the common people. ଯେତେବେଳେ ଭାରତରେ ଇଂରେଜୀ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଉପନିବେଶବାଦ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବିସ୍ତାର କରି କରି ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ ଓ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ସେମାନେ ଇଂରେଜୀ ଭାଷାକୁ ପ୍ରଚଳିତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଭାରତର କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀକୁ ଶିଖିଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଦର୍ଶନ, ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆବିଷ୍କାର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ ଏବଂ ସମାଜରେ ତାକୁ ସେଇମାନେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହା ଫଳରେ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତରେ ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମଭିତ୍ତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲ୍ସ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଭାରତରେ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଉପନିବେଶରେ ପରିଣତ କଲେ। ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଂରାଜୀ ମାଧ୍ୟମ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଲେ। ଏହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଏବଂ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଅଫ୍ ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସାଇନ୍ସ, ଫିଲୋସଫି ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା, ଇଂରାଜୀ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନ ଖୋଲିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନ, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। ତାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ସମାଜ ଆଉ ଧର୍ମ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଏହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ
धर्म और समाज क्षेत्र में संस्कार आसिला। यूरोपियन मिशनरीज बिगेन टू प्रेज ख्रिस्टियन एमंग द पीपल। जेतेबेले यूरोप लोक मैंने भारत में आसी निजर उपनिवेश प्रतिष्ठा कले, बसवास कले, वाणिज्य व्यवसाय कले, से समय सेमानंक सहित ख्रीष्ट धर्मर प्रचारक माने बा धर्मगुरु माने मध्य भारत को आसीथिले। सेही मानंकु मिशनरीज बोली कहा जाउथुला। सेही माने निजर ख्रीष्ट धर्म को महान धर्म रे परिणत करिबा पई ख्रीष्ट धर्म को भारत रे प्रचार और प्रसार कले। यही सरल एवं उदार धर्मर प्रभाव रे बहु भारतीय आसी मध्य ख्रिस्टियन धर्म रे दीक्षित हले। यह मध्य समाज रे सामाजिक परिवर्तन व संस्कार व धर्म भितर संस्कार आनिबा पई बाध्य करिथिला। मिशनरी स्कूल्स वेर एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया। जो मिशनरी माने भारत को आसिले विभिन्न चारिटी बा दातव्य स्कूल मान विद्यालय मान भारत रे प्रतिष्ठा कले। आमर कटक रे भी बहु मिशनरी स्कूल हितिला। मिशनरी स्कूल गुड़िकर काम रहिला जे मुक्त भाव रे लोक माननकु शिक्षित करिबा। एहा फल रे मध्य समाज रे संस्कार आसिबा पई बाध्य होला। इंडियन पीपुल कन्वर्ट्स टू द न्यू रिलीजन लाइक क्रिश्चियनिटी। भारतर लोक माने एही जो नूतन धर्मटी भारत रे प्रचार हैला ख्रिस्टियन धर्म, एहाकु मध्य आकर्षित हेले एवं निजे मध्य एही धर्म रे दीक्षित हेले। एहा फल रे भारतीय धर्म व्यवस्था और समाज रे मध्य संस्कार आसिबा पई बाध्य हैला। एस्टाब्लिशमेंट ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। मिशनरी मानक द्वारा प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा को आसीथिला, भारत को आसीथिला प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस आसिया फल रे विभिन्न पुस्तक गुड़ी को आंचलिक भाषा रे प्रकाश करिवार सक्षम हेले। यह मध्य समाज और धर्म क्षेत्र रे प्रभावित कला। एंड न्यूज पेपर्स पब्लिश्ड इन इंडिया। विदेश रे जेपरि खबर कागज प्रकाश होउतला सेपरि भारत रे मध्य साप्ताहिक, मासिक, दैनिक, त्रैमासिक एई प्रकार विभिन्न खबर कागज प्रकाश होला। विभिन्न समाज रो विभिन्न स्तर समस्या आगो को आसिला एवं से समस्या को संस्कार करिया पई मध्य प्रयास होला समाज रे। पिलाने यही सब थिला 9 गोटी कारण जोटा कि पाश्चात्य प्रभाव भारतीय समाज उपरे, भारतीय सामाजिक व्यवस्था और धर्मगत व्यवस्था रे संस्कार आनिबा पई 19 शताब्दी रे। यही संस्कार से आपे आपे आसी नथिला। भारतर केतेक जननायक बा केतेक उच्च शिक्षित व्यक्ति विशेष माने यही संस्कार आनिबा पई प्रयास करथिले। से भितरु अन्यतम होउचंती राममोहन राय एंड ब्राह्म मूवमेंट। राममोहन राय अर्थ होला पिला माने राजा राममोहन राय एवं ब्राह्म मूवमेंट से आरंभ करथिले। तांको विषय रे आलोचना करिबा। ही वाज बोर्न इन 1772 और 74। को पुस्तक रे 72 74 दीची, तेनु मु ताको टाइप कर दीची। से जन्म होइतिले 1772 बा 1774 मसिया रे इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हुगली इन बेंगाल। बंगाल हुगली जिल्ला रे से जन्म होइतिले। When he was boy only 9, he had been forced to marry 2 times. जेतेबेले राजा राममोहन राय को 9 वर्ष बयस होइतिला से समय भितर से 2 थर मध्य विवाह करथिले। पुणी तांको तृतीय थर विवाह पे मध्य बाध्य करा जाउथला। He saw in his own eye how widow of his brother was burnt alive as a sati. से निज आखि आगे देखिचंती भारतर से कलंकित जो प्रथा प्रचलित थिला सती व्यवस्था। निज भाईंकर मृत्यु पर तांकर स्त्रीटी को किपरि जीवंत अवस्था रे स्वामीर चिताग्नि रे झास देवाक पड़िथिला। एही कलंकित अध्यायटी को से निज आखिरे देखिथिले, मुख साक्षी से रहिथिले। ही कंप्लीटेड हायर लर्निंग टू पूना। से पूना रे शिक्षा प्राप्त करथिले, उच्च शिक्षा। ही स्टडीड अरबिक एंड पर्शियन, संस्कृत एंड इंग्लिश। से बहुभाषा ज्ञानर अधिकार थिले। से अरबिक, पर्शियन, संस्कृत
इंग्लिश भाषा को मध्य अध्ययन करथिले। से आरबिक, पर्शियन, संस्कृत, इंग्लिश भाषा रे मध्य पारंगम थिले। राजा राममोहन को विश्वास थिला वन क्रिएटर जणे होचंदी सृष्टिकर्ता, ए सुप्रीम जणे होचंदी मुख्य, ओमनिपोटेंट, विदाउट बिगिनिंग एंड विदाउट एंड। किछि आरंभ होली नाही, किछि शेष होली नाही, सबुर होचंदी जणे मुख्य, सबुठारे से विद्यमान, विदाउट शेप और विदाउट डिस्क्रिप्शन। कौन सी तांकर आकार नहीं, कोई कौन सी तांकर वर्णना नहीं। ही एडप्टेड मुस्लिम बॉय, बहुत कम पुस्तक विवरण दी एम एन दास या वर्णना कर लेखारे। से गोटे मुसलमान पुओटी को निजर संतान रूपे मध्य ग्रहण करथिले। He was the first in India to realize the value of European science and thought। से होचंदी प्रथम व्यक्ति जे कि भारतीय प्रथम भाव में यूरोपीय मानकर विज्ञान को आ चिंताधारा को बुझबार सक्षम होइथिले। ही ओपनड इंग्लिश स्कूल्स, से इंग्राजी शिक्षार सपक्ष रही एवं से इंग्राजी विद्यालय मध्य खोलिबा पे प्रयास करथिले एवं सफल होइथिले। लोक माननकु शिक्षित करिया पे प्रयास होइथिले। ही पब्लिश्ड बेंगाली वीकली संवाद कौमुदी, से बंगाली भाषार गोटे साप्ताहिक खबर कागज को प्रकाश करथिले, ताको कुआ जाउछि संवाद कौमुदी। ए पर्शियन वीकली कार्ड मिततुल अकबर बा मिलतुल अकबर इन 1882 1822 मसीह से पर्शिया भाषा रे गोटे साप्ताहिक प्रकाश करुले, ताको मितातुल अकबर कुआ जाउथुला एवं बंगाली भाषा रे गोटे साप्ताहिक खबर कागज प्रकाश करुले, ताको संवाद कौमुदी बोली कुआ जाउथुला। He was the first Indian to cross the sea and visit England। तो पिला माने राजा राममोहन राय होचंदी प्रथम भारतीय जी की समुद्र रे यात्रा करी इंग्लैंड को जाइथिले। तांको बहादुर शाह द्वितीय प्रेरण करथिले इंग्लैंड को जिबा पे। ही डाइड इन 1883। से 1833 मसीह रे मृत्युवरण करथिले। वर्तमान आलोचना करिबा ब्राह्म सभा। इट फाउंडेड बाय द राममोहन राय इन 1820। 1828 मसीह रे ब्राह्म सभा को प्रतिष्ठा करथिले राजा राममोहन राय। इट रिजेक्टेड फेथ ऑफ एनी इमेज, स्टैच्यू और स्कल्पचर, कार्विंग, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट और द लाइकनेस ऑफ एनीथिंग। ये ब्राह्म सभा बा राजमोहन राय गोटे विश्वास को से ग्रहण करुनथुले। कौन सी मूर्ति बा कौन सी पत्थर मूर्ति, कौन सी चित्र को ठाकुर रूप जो आम पूजा कर से ग्रहण करुनथुले। इट एडवोकेटेड फॉर प्रमोशन ऑफ चैरिटी, मोरालिटी, पाइटी, बेनेवोलेंस, virtue and the strength of the bond of union between men and religious prosecution and creeds। ये राजा राममोहन राय ब्राह्मण सभा दातव्य करिबा पई एवं समाज रे गोटे बॉन्ड यूनियन सृष्टि करिया पई चाहुथुले। जो यूनियन रही कि जे धर्म एवं मनुष्य मध्य गोटे यूनियन रहिबा दरकार बोली से मध्य मत रखिथिले। इट एडवोकेटेड एगेनेस्ट पोलोगामी, एगेनेस्ट करिवे स्पेलिंगटा सुधारिबे, पोलोगामी, कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी एंड सेकुलेशन ऑफ वुमेन। से तांकर विरोधी मत रखिथिले बहुविवाह प्रथा, जाति प्रथा, अछुआ भेदभाव एवं नारी मानू जो आगक बढ़िबार शिक्षा क्षेत्र में सुजोग दि जाऊनुला यार से विरोध मत रखिथिले। तार अर्थ से सपोर्ट करुले वुमेन माने आगक को जातु, पाठ पढ़ंतु, समाज रे कौनसी सामाजिक छुआ अछुआ भेदभाव श्रेणीभित्तिक समाज न हो एवं बहु विवाह प्रथा प्रचलित न हो से चाहूले। यह पिला माने ब्राह्म सभार कनसेप्ट।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପଢ଼ିବା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ଟର ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ପିଲାମାନେ 1833 ମସିହାରେ। ତାଙ୍କ ପରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିପରି ଚାଲିଲା ତାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଟାଗୋର ୱାଜ ଲିଡରସିପ୍ ଇନ୍ ଦ ସମାଜ ଆଫ୍ଟର ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ। ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦ୍ୱାରିକାନାଥ ଟାଗୋର ଯିଏକି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ଦ୍ୱାରିକାନାଥଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କରି ପୁତ୍ର ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ପ୍ରେଜ୍ ଟୁ ୱାର୍ସିପ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ ଗଡ୍। ସେ ଗୋଟିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଆମର ତ 33 କୋଟି ବା ତାକୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ କିଏ ବୁଝୁଛି 33 କୋଟି। ବହୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। In 1858 leadership was taken over by young men of 20 କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ। 1858 ମସିହାରେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏକି 20 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଥିଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ। ସପୋର୍ଟ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ। କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଜାତି ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ବିଭିନ୍ନ ଜାତି ଭିତରେ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଇନ୍ 1866 କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ଲେଫ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 1866 ମସିହାରେ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମ ମୁଭମେଣ୍ଟରୁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମ ସମାଜ ବୋଲି ଅନୁଷ୍ଠାନଟିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏହି ଦୁଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭୂମିକା ରହିଥିଲା ଭାରତୀୟ ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆସିବାରେ 19ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ born in 1836। 1836 ମସିହାରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। At the age of 20 ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ became a priest। ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କୁ, ସେ ଜଣେ ପୁରୋହିତର ଭୂମିକାକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ହି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ଡ ଡିପ୍ ତାନ୍ତ୍ରିକ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ୟୋଗିକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍। ସେ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିଲେ ତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୋଗ। His principles love and devotion linked men with God। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଭକ୍ତି ଭଗବାନ ଆଉ ମାନବ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ। He believed that Kali is the supreme creator energy and the divine mother of the entire creation। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ମାତା କାଳୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରିଣୀ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୃଷ୍ଟିର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାତା। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଏହା ରହିଥିଲା। His thought of God both as formless in forms। ସେ ଦୁଇଟି ଯାକ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଫର୍ମଲେସ୍ ବା ଫର୍ମଲେସ୍ ଆଉ ଫର୍ମ ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। He tried to save Hinduism from external attack by his theory of liberty। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଚାହୁଁଥିଲେ ହିନ୍ଦୁ ମତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ ଆସିଛି, ସେ ପ୍ରଭାବରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହିଁରୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ନରେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ और स्वामी विवेकानंद became his disciples। बहुत बढ़िया कथाଟିଏ। स्वामी विवेकानंदଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ନାମ ଥିଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ଦତ୍ତ, ପରେ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଡାଏଡ୍ ଇନ୍ 1886। ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା 1866 ମସିହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। He was born at Calcutta in 1863। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ 1863 ମସିହାରେ କଲିକତା ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। He known as the ମସିହା ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍। ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମସିହା ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଏଜ୍, ନୂତନ ଯୁଗର ସେ
जड़े आविर्भावक बोली कहुच्छी भारत में। ही प्रेजेंट हिंदुइज्म इन 1893 religious assembly at Chicago in America, it now as the Parliament of Religion। पिलाने 1893 मसीह पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियन बसीथिला अमेरिकार चिकागो सहर रे, जोठारे कि भाग नहीं स्वामी विवेकानंद। सी हिंदू धर्म आर तत्व को से प्रकाश करथिले एवं हिंदू धर्म को विश्वर सर्वोटु प्राचीन धर्म रूपे मध्य सूचना प्रदान करथिले। ही पेंटेड विविडली द ट्रू चार्टर ऑफ हिंदू लिबरलिज्म, यूनिवर्सलिटी एंड कॉस्मोपॉलिटिज्म। से प्रकृत रे जो हिंदू धर्मर उदार एवं जो विश्व कुटुंब चिंताधारा ताकू मध्य प्रकाश करथिले। ये क्रिएट ए फीलिंग ऑफ नेशनल प्राइड। से भारतर युव समाज को पाखरे देशभक्तिर चिंताधारा को जागृत कराई। ही सेड इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस शुड लेन टू नेशनल कॉन्शियसनेस। से कही जदि आम निजे सचेतन हवा ताहाले आम जाति आम देश मध्य सचेतन हब। माने निज पाखरे संस्कार आनी से प्रथम कही। बाय हिम द हिंदू मॉडर्नाइज। से प्रयास करथिले बा तांकरी द्वारा हिंदू माने आधुनिकता स्पर्शरे आसीथिले। इन 1897 ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। निज गुरुंक नाम रे से 1897 मसीह रामकृष्ण मिशन प्रतिष्ठा करथिले। द बेलूर मठ नियर कालकाटा बिकेम द सेंटर ऑफ द रामकृष्ण मिशन। कालकाटा रे जो बेलूर मठ रही से बेलूर मठ होची रामकृष्ण मिशन रो मुख्य कार्यालय। यह थिला मठ गुरु को उद्देश्य स्वामी विवेकानंद। ही विजिटेड टू वेस्ट इन 1889 अगेन। थरे तो से चाक्यगो जाइथिले 1893 पुणी से 1899 पाश्चात्य भ्रमण जाइथिले। ही एस्टाब्लिश्ड वेदांत सेंटर। से वेदांत सेंटर मध्य प्रतिष्ठा करथिले। ही अटेंडेड द कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री इन 1900। से कांग्रेस ऑफ द हिस्ट्री रे जोग देइथिले 1900 मसीह रे। ही डाइड इन 1902 एट द एज ऑफ 39। स्वामी विवेकानंद 1902 मसीह शेष निश्वास त्याग करथिले जेतेबेले तांको बयस 39 वर्ष होइतिला। तो स्वामी विवेकानंद द्वारा कौन होइतिला पिला माने हिंदू मानक पाखरे आधुनिकतार स्पर्श आसीथिला। देश भक्ति चिंताधारा आविर्भाव होइतिला एवं हिंदू धर्म प्राचीन धर्म बोली विश्व को से सूचना प्रदान करथिले। तापर आम आलोचना करबा प्रार्थना समाज। इट एस्टाब्लिश्ड इन 1867 महाराष्ट्र रीजन। ये प्रार्थना समाज 1867 मसीह प्रतिष्ठा होता। प्रथम भाव में महाराष्ट्र अंचल प्रतिष्ठा होता। महादेव गोविंद रानाडे फाउंडेड दिस इंस्टीट्यूशन। महादेव गोविंद रानाडे यही प्रार्थना समाज को प्रतिष्ठा करथिले। दिस ऑर्गेनाइजेशन एट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेस्टर्न एजुकेशन। यही अनुष्ठान पाश्चात्य शिक्षा प्रति आकर्षित होइतिला एवं ताहारी सपक्ष थिला। यह मध्य भारत रे सामाजिक संस्कार आनिबारे प्रयास करथिला और शिक्षा क्षेत्र धर्म क्षेत्र संस्कार आनिबारे प्रयास करथिला। तापर हम आलोचना करिबा द आर्य समाज। द ऑर्गेनाइजेशन डिस्प्लेजर द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। यही आर्य समाज प्रकृत में खुशी नथिला। ये अनुष्ठान जो भारत में ख्रीष्ट धर्म द्रुत गति प्रचार होता और लोक मैंने ग्रहण करुले। दिस ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय द स्वामी दयानंद सरस्वती। यही अनुष्ठान आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिष्ठा होता। दयानंद सरस्वती वाज बॉर्न इन 1824। दयानंद सरस्वती जन्म होता 1824 मसीह। ही डिसबिलीव आइडियल एज गॉड। से मूर्ति पूजार को विरोध करुले एवं विश्वास करुले। ही बिकेम ए सन्यासी एट द एज ऑफ 21।
से 21 वर्ष बयस सन्यासी जीवन यापन आरंभ करथिले। ही सेड बैक टू वेद, से कहतुले वेद को फेरी चल, वैदिक लाइफ उपरे से अत्यधिक विश्वास करथुले। प्राचीन परंपरा वैदिक जीवन यापन शैली से बंचिबा पई कहतुले। आर्य समाज क्रिटिसाइज टू आइडियल वर्शिप, रिलीजियस सेरेमनीज, पूजा एंड रिचुअल्स। आर्य समाज मूर्ति पूजा को विरोध करथुला, धर्म उत्सव को विरोध करथुला, विभिन्न पूजा आ पद्धति गुडी को विरोध करथुला। दयानंद सरस्वती डाइड इन 1883। 1883 मसीह दयानंद सरस्वती शेष निश्वास त्याग करथिले। वर्तमान आलोचना करिबा द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोस मीन्स गॉड एंड सोफिया मीन्स विजडम, भगवान और ज्ञान। ये दुईटी मिश्रण शब्द रे थियोसॉफिकल सोसाइटी हिच। थियोर अर्थ हला ठाकुर, सोफियार अर्थ हला ज्ञान। ये होची थियोसॉफिकल सोसाइटी। इट फॉर्म्ड बाय रूसियन लेडी मैडम एच.पी. बाल्भास्की एंड इंग्लिश आर्मी ऑफिसर कर्नल H.S. ओल्टाको एट अमेरिका इन 1815। 1815 मसीह थियोसॉफिकल प्रथम रूसियार जड़े नारी मैडम एच.पी. बाल्भास्की एवं इंग्लिश जड़े आर्मी ऑफिसर कर्नल H.S. ओल्टा अमेरिका अनुष्ठान को प्रकाश करथिले। इन 1886 a place named Adyar in Madras became the chief center of the society and branches were established at Bombay, Bangalore, Surat। 1886 मसीह भारतर माड्रास निकटरे आद्यार अंचलटी एई थियोसॉफिकल सोसाइटी गोटे मुख्य केन्द्र थिला एवं आर शाखा गुड़िक सारा भारत में व्यापी थिला, जेपरि कि बॉम्बे, बेंगलोर, सुराट अंचल प्रतिष्ठा होता। मिसेस आनी बेसेंट लीड टू द थियोसॉफिकल मूवमेंट इन इंडिया। ये जो थियोसॉफिकल मूवमेंट भारत में चलता तार प्रकृत नेतृत्व नहीं जड़े नारी मिसेस आनी बेसेंट। दिस ऑर्गेनाइजेशन मेजरली वर्क इन द फील्ड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन और एजुकेशन। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी अर्थ है भारतीय मानक शिक्षा प्रज्ञा एवं भारतीय मानक प्रति मनरे देश प्रेम जागृत कराइबा। मु आशा करुच्ची मोर एई आलोचना आपण मानकर जुक्त 3 परीक्षार सहायक। वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं समस्त छात्र छात्री गण शेयर करंतु। वंदे मातरम।